Now court has held him guilty, and as a consequence of pronouncement of the court, he has been disqualified. So according to me, this is a judicial process, this is a judicial cycle, and there is nothing political about it. So I don't think that any comment is required from our side on disqualification as well as the decision of the court. Sir, OBC community has also been targeted by Rahul Gandhi's comments, and that has also been... That is why in his election speech in Karnataka, he has abused the OBC community. Now, consequent to that comment, cases were filed in various parts of the India. Even cases have been filed in Arunachal also, because that particular community also live in Arunachal Pradesh. But anyway, after long 5 years, this was not that the decision has been taken today or it was taken in just 1 month back. After a prolonged judicial process of last 5 years, he has been held guilty. The judicial recourse is open to him. He can challenge the verdict in High Court or Supreme Court. That's a different thing. But he should have rendered apology immediately after that speech. Sometimes slip of tongue happen. Even with us, slip of tongues happen. But in next 10 minutes or 15 minutes, we issued a statement that sorry, that word has gone out of my mouth unintentionally or it was not intended. The matter would have been closed. But Rahul Gandhi has not apologized, neither withdraw the comments against the community for long 5 years. So that once again goes to prove that comments were not unintentional. The comments were intentional and it was meant to abuse the OBC community of the country. So he could have withdrawn that comment. He could have rendered an apology to the community because it is not an apology to any BJP people. That apology could have been rendered to the OBC community immediately after the speech or 24 hours after the speech. But he has not done. He behaved arrogantly. So you have to, the court has to balance the arrogancy of an individual and pride and prestige of the OBC 24 hours after the speech. But he has not done. He behaved arrogantly. So you have to, the court has to balance the arrogancy of an individual and pride and prestige of the OBC community. So court has to strike the balance. And court has struck the balance in favor of the OBC community vis-a-vis the arrogance of an individual. तो इससे पहले भी कोर्ट उनको सतर्क रहने के लिए बोले थे, लेकिन उसके बाद लगातार राहुल गांधी से कमेंट आते रहे। वही बात है कि कभी कभी हम राजनीति करता हूँ, स्पीच में कभी कभी दो एक शब्द गलत निकल सकता है, वो कोई बड़ा बात नहीं होता है। लेकिन इमीडिएटली आफ्टर द स्पीच या तो मेरा पार्टी का लोग बता देता है कि दादा आपका मुंह से गलत निकल गया, या मेरा ही अपना एक अनुभव होता है मैं ये बोलना नहीं सही था। सो मैं क्या करता हूँ, इमीडिएटली हम एक प्रेस रिलीज इशू करता हूँ या खुद पे मीडिया का सामने आके बोलता हूँ भाई ये मुझको नहीं बोलना चाहिए था। 5 साल राहुल गांधी जी ने किसी को अपॉलॉजी नहीं किया। ये अपॉलॉजी नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं था, ये अपॉलॉजी ड्यू था सारे ओबीसी कम्युनिटी के लिए। तो आज भी आप देखिए कोर्ट वर्डिक्ट का बाद भी तो अपॉलॉजी नहीं है। कोर्ट वर्डिक्ट का बाद भी ऐसे लड़ाकू विमान होके बैठा हुआ है कि भाई हम जुडिशियरी से ही फाइट कर लूंगा। भाई ये कोई व्यक्तिगत युद्ध नहीं है। आपने अगर कोई कम्युनिटी का खिलाफ बोलता है तो कम्युनिटी का तो लोगों का, अगर आपका कोई आप सोचता है कि आपका प्राइड है, आपका प्रेस्टीज है, आपका अहंकार है, तो हमारे देश का ओबीसी कम्युनिटी का भी तो अहंकार है।
उनका भी तो अस्मिता है। तो ये बात सबको देखना पड़ेगा और इसमें कोई राजनीति नहीं है। कांग्रेस की तरफ से लगातार आरोप लगाया जाता है कि जुडिशियरी के ऊपर भी बीजेपी की तरफ से डेमोक्रेसी की हत्या बोल रही है। कांग्रेस दल में जो ओबीसी कम्युनिटी का नेता है, आप उनको जाके व्यक्तिगत बात कीजिए, क्या वो लोग खुश है? कौन खुश होगा? अभी स्टेटमेंट देना अलग बात है, पर कोई किसी को अच्छा लगेगा कि पूरा कम्युनिटी शोर है बोल देने से? अगर आप लोग का बीच में भी कोई ओबीसी है, क्या आप लोग को अच्छा लगा था वो समय जब बोल दिया था कि आपका सारे हर शोर क्यों ओबीसी होता है, या जो भी कम्युनिटी का नाम लिया है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ। तो ये तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अहंकार और एक सारे कम्युनिटी का अस्मिता, ये दोनों का बीच में भी कोई ओबीसी है, क्या आप लोग को अच्छा लगा था वो समय जब बोल दिया था कि आपका सारे हर शोर क्यों ओबीसी होता है, या जो भी कम्युनिटी का नाम लिया है, मैं लेना नहीं चाहता हूँ। तो ये तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति का अहंकार और एक सारे कम्युनिटी का अस्मिता, ये दोनों का ऊपर देखना है। इसमें जुडिशियरी ने अच्छा किया है। अगर जुडिशियरी का डिसीजन आपको ठीक नहीं लगे तो आप जाइए ऊपर कोर्ट में। जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन का बात था, जो ऑर्डिनेंस लाया गया था कि तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन ना हो, वो तो राहुल गांधी खुद ही तोड़ दिया है। इफ कर्मा स्ट्राइक हिम बैक, तो उसमें हमारा क्या गलती है? ये तो हम तो हिंदू परंपरा में मानते हैं कि कर्मा स्ट्राइक यू बैक। तो अगर आपको कर्मा है स्ट्राइक यू बैक, उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर सिंह जब प्रधानमंत्री था, उन्होंने तो ये ऑर्डिनेंस लाया था कि तुरंत डिस्क्वालीफाई आप ना हो, आप ही जाके इसको तोड़ दिया। राहुल गांधी का कैरियर खत्म? नहीं, मेरा नहीं लगता है। आप हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप एक विरोधी दल का नेता है, आपको कोई मीटिंग में जाना तो मना नहीं है। आप रैली करिए, मीटिंग करिए, भारत जोड़ो यात्रा कीजिए, कोई मना नहीं है। लेकिन कोई कम्युनिटी का ऊपर इतना आपत्तिजनक मंतव्य मत कीजिए, करना ठीक नहीं। फांसी कम्युनिटी